lecture of unlock NEET. Class last lecture में हमने start किया था endomembrane system where we discuss कि group of cell organelles जिनके functions आपस में coordinated हैं, they are considered to be a part of endomembrane system. इसके अंडर में हमें 4 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. सो फार वी हैव डिस्कस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने डिस्कस किया व्हाई दे वर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्लेस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल. ल्यूमिनल स्पेस किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस क्या होता है, राइट? Also we discussed type of endoplasmic reticulum as granular and agranular. Riboforeign protein किस type से associated हैं. Along with that we also discussed कि what are the respective functions of rough and smooth endoplasmic reticulum. साथ ही हमने समझा कुछ important terms like glycogenesis क्या है, glycogenolysis क्या है, what is hydroxylation reaction, right? इसके अलावा हमने समझा कि कैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स. एंड वी आल्सो डिस्कस मेनी अदर फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज गोल्जी बॉडीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ क्लास, before moving on to Golgi bodies, there was a topic left with respect to endoplasmic reticulum. Now class, endoplasmic reticulum को हम अलग-अलग नामों से represent करते हैं, right? For example, retinal cells में smooth endoplasmic reticulum को हम represent करते हैं as myeloid bodies. Same way class, nerve cells में rough endoplasmic reticulum is represented as Nissls granule. Muscle cells में smooth endoplasmic reticulum represented as sarcoplasmic reticulum. And plasmodesmata में rough and smooth endoplasmic reticulum represented as desmotubules. Exam point of view हमेशा ये one word में या कुछ terms में आपसे questions पूछे जाते हैं. So this part is quite important. पूछे जाते हैं certain names like myeloid bodies, Nissl granules, sarcoplasmic reticulum and desmotubule किन type of endoplasmic reticulum से associated हैं. So you have this table. Now move on to our next endomembrane system, that is Golgi bodies. Golgi body also known as Deltals complex, traffic police of cell and Baker's body. सबसे पहले बात करें इनकी डिस्कवरी की. सो साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने इन्हें डिस्कवर किया फ्रॉम द नर्व सेल्स ऑफ आउल एंड कैट. और इस डिस्कवरी के लिए जिस टेक्निक का यूज किया गया दैट इज मेटालिक इम्प्रेग्नेशन, और जिन केमिकल्स का यूज किया गया वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट. अकरेंस की बात करें क्लास, सो गोल्जी बॉडी दे आर गोइंग टू बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट रहेंगे यूकैरियोट्स में विद एन एक्सेप्शन. मेच्योर आरबीसी में एब्सेंट रहेंगे and mature sieve tubes में absent रहेंगे. Sieve tubes, as you know, they are the components of phloem, right? ये food transport में help करते हैं. So Golgi body, they are going to be absent in mature RBC as well as sieve tubes. Now class, let's understand the composition of Golgi body. Components of Golgi body. Class, Golgi body is composed of basically 4 components. These are cisternae, tubules, vesicles and Golgi vacuoles. सबसे पहले है क्लास cisternae. एंड cisternae जो होते हैं क्लास, they are slightly curved. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये थोड़े से curved होते हैं, जिसकी वजह से Golgi bodies को एक polarity मिलती है. यानी कि cisternae have 2 phases, that is the cis phase and the trans phase. Cis phase जो है क्लास, it is close to the endoplasmic reticulum, जबकि trans phase जो है it is close to the plasma membrane. Cis phase को हम receiving side भी कहते हैं Golgi apparatus का, क्योंकि जो भी vesicles endoplasmic reticulum से आएंगे they are going to get received by the cis phase of Golgi apparatus.
सिस फेज को हम कॉन्वेक्स साइड, प्रॉक्सिमल साइड और फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ट्रांस फेज है क्लास, दैट इज आल्सो सेड टू बी शिपिंग साइड, या फिर इसे कॉन्केव साइड, मैच्योरेशन साइड और डिस्टल साइड भी कहा जाता है। सो क्लास, एज यू नो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन या लिपिड्स फॉर्म होंगे, नाउ दोस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दे आर गोइंग टू गेट पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स के फॉर्म में ये रिलीज होंगे एंड दीज वेसिकल्स दे आर सेड टू बी ट्रांसपोर्ट वेसिकल और ट्रांजिशनल vesicles. These vesicles they are going to get fused at the cis phase of Golgi apparatus और ये बनाएंगे Golgi body, right? अब इन vesicles के अंदर क्लास जो भी बायोकेमिकल प्रेजेंट है, whether being lipid, whether being protein, उसका modification होगा इस cisternae में, right? As they move or as they pass from the cis phase to the trans phase. सिस फेज से ट्रांस फेज में आते आते क्या होगा, इन वेसिकल्स के अंदर के बायोकेमिकल का मॉडिफिकेशन हो जाएगा एंड व्हाटएवर मॉडिफाइड सब्सटेंस विल कम आउट, इट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द ट्रांस फेज। वो ट्रांस फेज से बाहर आ जाएगा, राइट, एंड दे आर गोइंग टू बड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। दीज आर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहां से आए थे, those transport vesicles they are going to get released from the trans phase, right? और क्योंकि इनके अंदर क्या है, secretory substances present है, so they are going to bud off as secretory vesicles. Clear class? तो आपको याद रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल रिलीज होंगे, ये सिस फेज में आकर के क्या करेंगे, फ्यूज, राइट? Then they are going to move through this cisternae from the cis phase to trans phase. इन vesicles के अंदर जो भी बायोकेमिकल है उसका modification होगा, right, as they move from cis phase to trans phase. और trans phase से जब ये बाहर निकलेंगे, they are going to be called as secretory vesicles. यहाँ से जो आए थे वो आपके transitional vesicles थे और यहाँ से जो trans phase से निकलेंगे ये आपके secretory vesicles हैं, as they have secretory substances in them. Second component है class tubules, and these tubules are associated with the trans phase और ये generally आपको cisternae के end से निकलते हुए नजर आएंगे। Vesicles जो हैं they are going to arise or they are going to bud off from the tubules. ये tubules से ही bud off होंगे from the tip of tubules. और जो गोल्जियन वैक्यूल्स है क्लास, ये भी आपके ट्रांस फेज से अराइज होंगे, राइट, एंड सम ऑफ द गोल्जियन वैक्यूल दे आर नोन एज और दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड एज लाइसोसोम व्हिच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, दे आर हेल्पफुल इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड सेवरल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स। सो क्लास, आपको पता होना चाहिए लास्ट हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था, वहां पे सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स थे, राइट? ऐसे ही आपके यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड गोल्जियन वैक्यूल्स। सिस्टर्ने एक पोलैरिटी देने का काम करता है, राइट, द सिस एंड द ट्रांस फेज। सिस का मतलब क्या है, सिस्टर्ने यहाँ पे फॉर्म होंगे, इसीलिए इसे फॉर्मेटिव फेज भी कहा है। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि व्हाटएवर सब्सटेंस जो सिस से एंटर करेंगे दे आर गोइंग टू गेट मॉडिफाइड, दे आर गोइंग टू गेट मैच्योर, राइट, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंड ये ट्रांस फेज से बाहर आ जाएंगे एज सेक्रेटरी वेसिकल्स, राइट। ट्यूब्यूल्स जो है ये ट्यूब लाइक होते हैं, सेम ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं एंड दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द ट्रांस फेज, राइट। इसके अलावा वेसिकल्स आपके अगेन दे कैन बी राउंड और ओवल इन शेप, सैक लाइक होते हैं एंड दे अराइजेस फ्रॉम द टिप ऑफ ट्यूब्यूल्स। और जो गोल्जियन वैक्यूल है ये भी आपके ट्रांस फेज से ही अराइज होंगे, राइट। दे आर गोइंग टू गेट बड ऑफ as vesicles और ये गोल्जियन वैक्यूल्स जो है they are going to get transform as lysosomes. Now class, यहाँ पे कुछ important terms हैं। For example class, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास का जो एरिया है, जो जोन है,
right? The zone or this area is going to be devoid of organelles like ribosomes यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नजर नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आएगा, and that is why this is said to be zone of exclusion. याद रखना क्लास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास it is devoid of cell organelle and that is why we consider it to be zone of exclusion. साथ ही क्लास देयर इज अ टर्म दैट इज डिक्टियोसोम, यानी कि गोल्जी बॉडी के जो स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ने हैं उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डिक्टायोसोम्स हैं, राइट? यहाँ पे क्या होता है, एनिमल सेल्स के केस में इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टर्ने इज सीन, यानी कि जो सिस्टर्ने हैं दे आर टाइटली पैक्ड, एनिमल सेल्स के केस में ये इंटरकनेक्शन दिखाएंगे, जबकि प्लांट सेल्स के केस में ये क्या होते हैं, दे don't show interconnection, instead they could be seen dispersed in the cytoplasm. तो याद रखना क्लास, animal cells में cisternae of Golgi body they show interconnection, while in case of plant cells interconnection absent रहेगा, instead they are going to get dispersed in the cytoplasm. So these are important terms जो आपको one word में या maybe आपको reasoning में ये questions आ सकते हैं, that is zone of exclusion किसे कहते हैं and what are dictyosomes, right? Dictyosomes basically stacks of cisternae को कहा गया है, animal cells में interconnected रहेंगे, जबकि plant cells में they are going to be dispersed in the cytoplasm since they are not interconnected. Now class, let's understand important functions of Golgi body. Class, let's discuss the functions associated with Golgi bodies. Class, इसका पहला function है that it is involved in the terminal step of glycosylation. आपको याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमने डिस्कस किया था कि जो इनिशियल स्टेप है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है ग्लाइकोसाइलेशन का, यानी ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन का, बट इसका फाइनल स्टेप या फिर टर्मिनल स्टेप कंप्लीट होगा गोल्जी बॉडी में. एज यू नो कि कैसे प्रोटीन्स लिपिड्स फॉर्म होते हैं, राइट? एंड वंस दे रीच गोल्जी बॉडीज दे आर गोइंग टू अंडरगो मॉडिफिकेशन और उसके साथ ही कंप्लीट होता है ग्लाइकोसाइलेशन का फाइनल स्टेप. सेकेंड फंक्शन है क्लास, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम. क्लास, एक्रोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ मेल गैमीट और इन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द मेम्ब्रेन और द कवरिंग ऑफ एग, जिसकी वजह से मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन फैसिलिटेट होता है. सो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम दैट कंटेन digestive enzymes. Next class, they are involved in vitellogenesis, that is egg formation, yolk formation में ये involved रहते हैं. Next, they are involved in the secretion of mucus, wax, gum, digestive enzymes and antibodies. Also, they are involved in processing, packaging, transporting secretory substances to its destination. आपने देखा कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आते हैं, राइट? कैसे इनकी मॉडिफिकेशन होती है, दे अंडरगो प्रोसेसिंग, दे अंडरगो मॉडिफिकेशन और उसके बाद ये अलग सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेज होते हैं और ट्रांसफेज से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट? और उसके बाद क्या होता है? सम ऑफ देम दे बिकम लाइसोसोम्स. कुछ गोल्जियन वैक्यूल्स आपके लाइसोसोम की तरह एक्ट करते हैं, कुछ वेसिकल्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं एंड दे पास आउट एज सिक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ द सेल. ऑल्सो दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. आपको पता है सेल वॉल का फॉर्मेशन पेक्टिन से, राइट? इसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, हेमीसेल्यूलोज से होता है. सो ऑल दो सब्सटेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? गोल्जी बॉडीज से. दे आर इन्वॉल्व इन लाइसोसोम फॉर्मेशन. आपको बताया था गोल्जियन वैक्यूल्स दे गेट ट्रांसफॉर्म एज लाइसोसोम जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे which are involved in the breakdown of protein, fats and other biochemicals. Root hair formation में they are involved and also they are involved in the transformation of
वन मेम्ब्रेन इनटू अनदर। आपने देखा कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो वेसिकल्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए गोल्जियन एपरेटस की मेम्ब्रेन में। गोल्जियन मेम्ब्रेन यानी कि गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वो आपकी ट्रांसफॉर्म हुई किस में, लाइसोसोम्स में, राइट। तो लाइसोसोम्स लेटर ऑन फ्यूज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है फ्रॉम वन मेम्ब्रेन टू अनदर मेम्ब्रेन। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिस्पेक्टिव टू गोल्जी बॉडी। सो क्लास, आई होप दिस लेक्चर इज वेरी मच क्लियर टू यू, जहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारा सेकेंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दैट इज गोल्जी बॉडी। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी, कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कनेक्ट हुआ गोल्जी बॉडी से। आपने देखा कि उसके जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए, राइट, प्रोसेस हुए, पैकेज हुए, राइट, और फाइनली क्या हुए, दे आर और फाइनली क्या हुआ, दे हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। सम एज लाइसोसोम, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गए, दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रैफिक द सेल, क्योंकि पूरा का पूरा जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला काम है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, एवरीथिंग इज बीन डन बाय गोल्जी बॉडीज। एक्रोसोम फॉर्मेशन क्या है, वाइटिलोजेनेसिस क्या है, राइट, लाइसोसोम फॉर्मेशन क्या है। सो ऑल दिस is very much clear to you. So in our next lecture we'll discuss another endomembrane system, that is lysosome. So stay connected and stay tuned for our next lecture. Thank you and have a great day.